guys. So in the last class we have discussed a little bit about the basic element, that is carbon. So we know that our body is mainly comprised of some elements, no, and that element may be your if you see the elements are nearly the elements are generally the hydrogen, then oxygen, then carbon, then some other elements, no. So basically we have generally जो हम लोग का elements होता है वो generally जो हम लोग का body है, our body is mainly comprised of some elements, and in that particular elements all having different properties, no, because all having different atoms, all are different atoms. So basically different atoms will be have different chemical properties, or you can say different molecular mass. So we encompasses with many elements, we encounter with many elements in day-to-day basis. So generally that carbon is the basic building part of a organic compound. So generally except carbon, all are generally called as non-living, or you can say that all having no such characteristics of showing any organic properties. But if carbon is there with, if carbon is forming any molecule, or if carbon is making any compound, then they will be called as organic compound. So basically in this section or in this unit we'll discuss some of the topics that related to the carbon, because we are dealing with the organic chemistry. So generally if you want to see the carbon, then generally as we have also studied in the earlier classes also, that carbon 1 to carbon 4, ठीक है, carbon 1 to carbon 4, these are they are exist in gaseous, or they are exist in gaseous form, or you simply called as in gaseous form, you can say. If you go on higher on increasing number of carbon, that is carbon 5 to carbon 18 onwards, you will see that they are existing in liquid form, like our petrol, then kerosene, then diesel. These are all having carbon 5 to carbon 18 structure. That means they have in between carbon 5 to carbon 18. Then carbon 18 onwards, ठीक है, carbon 18 onwards से क्या हो जाता है, ये solid form में रहता है, ठीक है, they are existing in solid form. So these are the very basic form. So generally in this unit generally we'll see some topics regarding that carbon, what is the shape of carbon. So generally what is the structure of the carbon. So basically any atom does not have any structure. Any atom, कोई भी atom ले लो periodic table से, जैसे हम लोग का periodic table में element है 118, ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं हम लोग, और क्लास छोटा क्लास में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि वी हैव 118 एलिमेंट्स. तुम लोग ये जानते हो कि कितना एलिमेंट हम लोग को नेचुरली मिलता है. तो नेचुरली वी गॉट 98 एलिमेंट. दैट मीन्स नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो होता है वो 98 एलिमेंट होता है, और बाकी जो 20 एलिमेंट होता है वो जनरली क्या है, दीज आर हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट दीज आर नॉट नेचुरल, दिस मे बी यू कैन से नेचुरल नहीं है, मतलब दे आर नॉट फाउंडिंग इन नेचर, बट तुम मैनमेड बोल सकते हो. जो मैनमेड एलिमेंट है वो 20 एलिमेंट उसमें आ सकता है, ठीक है. तो जनरली 90 एलिमेंट जो होता है वो जनरली दे आर एग्जिस्टिंग और दे आर फाउंड इन नेचर, बट द अदर एलिमेंट्स दैट इज लेफ्ट आफ्टर द 98 दैट आर मैन मेड, यू कैन से. So generally like uranium, no, like polonium. So these are what? These are man-made, you can say synthetic element. So basically in this unit we have to see some structures of organic compound. Now basically if anyone asks you what is the structure of carbon or what is the shape of carbon, then it is very difficult to say. But if a compound is formed by carbon, then you can predict the structures.
and for predicting the structure of any compound, it is not hard and fast rule that you have to see only the organic compound structure. Yeah, there are many compounds, like many inorganic compound are there, many organic compound are there. So generally, if you want to confirm any structure of organic compound or inorganic compound, then generally you have to see, you have to go some you have to see some you have to, that means तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम लोग कोई भी अननोन कंपाउंड का या अननोन मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर्स एनालिसिस करते हैं. जैसे तुम लोग को क्लास 8 और क्लास 9 में तुम लोग को एक मैं कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ कि एटॉम का, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है, गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड, सपोज इसका स्ट्रक्चर तुमको निकालना है, मतलब ये सच में गैलियम आर्सेनाइड मॉलिक्यूल है या नहीं, कंफर्म कैसे करोगे? सो थ्रू सम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को एनालिसिस करना है, मतलब कोई भी चीज को देखना है अच्छे से थ्रू मैग्निफिकेशंस, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली माइक्रोस्कोप में डाल देते हैं ना. कोई भी, जैसे बायोलॉजी में ज्यादातर माइक्रोस्कोप में कोई भी सैंपल रखा जाता है, सैंपल मतलब कोई भी सेल हो, कोई भी टिश्यू हो, उसमें सेल माइक्रोस्कोप में रखा जाता है. तो ये तुम्हारा जनरली हाई डेफिनेशन का माइक्रोस्कोप हो सकता है, या फिर सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, जो भी तुमको चाहिए वो उस हिसाब से तुमको मिल जाता है. बट जनरली इन द केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू कंफर्म एनी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो या फिर इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जनरली उसमें हम लोग एक चीज तुम लोग ने स्टडी भी किया आई थिंक इन क्लास 9 और 10, कि एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है कंपाउंड का, कि उसमें एटॉम्स क्या क्या है, एटॉम्स को अगर थोड़ा मैग्निफिकेशन करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसमें हम लोग STM, शायद तुम लोग ने स्टडी भी किया. ठीक है, इसका तुम लोग को पता है क्या, ये क्या है पता है, स्कैनिंग, टनलिंग एंड माइक्रोस्कोपी. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं कि इसमें सच में गैलियम आर्सेनाइड है या नहीं है एटॉम्स, तो उससे मालूम चल जाता है, मतलब ऑप्टिकली इमेज का डेफिनेशन देता है इसमें. ठीक है, देन देयर आर मेनी, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है आजकल आ गया जिसमें हम लोग कोई भी कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं. जैसे इतना हायर क्लासेस यू विल सी दैट एक्सरे एनालिसिस. हाँ, एक्सरे एनालिसिस से तुमको क्या मिलेगा, अगर सपोज कार्बन का कोई स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन किसी कोई भी एलिमेंट के साथ अगर कंपाउंड बना रहा है, वो तुम एक्सरे एनालिसिस से तुम मालूम कर सकते हो. ठीक है, एक्सरे एनालिसिस. देन देयर आर मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट, सेम है, टेम है. ठीक है, so there are many instruments. Then if you go on higher classes, you will see that some spectroscopical analysis is there, that is NMR spectroscopy है. ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोला जाता है. ठीक है, देन इसके बाद तुम्हारा आएगा यूवी विजिबल होता है. ठीक है, ठीक है, देन तुम्हारा और आता है, वो होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR. सो ये जो टॉपिक्स मैंने लिख रहा हूँ, मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लिख रहा हूँ, इसका बड़ा बड़ा टॉपिक्स होता है, मतलब यू हैव टू स्टडी इन डिटेल इन द हायर क्लासेस. और जनरली कोई भी कंपाउंड का एनालिसिस करना है, देन सपोज कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या करता है, हम लोग यूवी विजिबल लिया जाता है ताकि उस कंपाउंड का एनालिसिस कर पाए हम लोग. उससे हम लोग कंफर्म करते कि हाँ, मेरा जो कंपाउंड मुझे चाहिए वो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे कंफर्म हुआ है. इसके बाद तुमको डाटा, तुमको सोर्स लेना है, कंफर्म करना है, जिसका हम लोग बोलते हैं रिफरेंस. और रिफरेंस तुमको देखना है कि हाँ, ये वैल्यू इसमें आ रहा है कि नहीं. अगर है, मेरा एनालिसिस में आ रहा है, देन यू हैव टू कोरिलेट, देन ओनली यू कैन कंफर्म योर कंपाउंड. यस, मेरा कंपाउंड में ये है, या ये कंपाउंड मुझे बना है. तो इस टाइप का कुछ एनालिसिस होता है इन द, जनरली यू हैव टू डू इट इन द हायर क्लासेस, नॉट इन द लोअर क्लासेस. बट एक्सरे एनालिसिस, देन STM, ये तुम लोग को जनरली तुम लोग ने थोड़ा बहुत स्टडी किया इन द लोअर क्लासेस की. कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसमें अगर सपोज किसी एटॉम का अगर कंफर्म करना है कि हाँ एटॉम है, इसमें ये गैलियम एटॉम है, इसमें आर्सेनाइड एटॉम है, देन यू हैव टू कंफर्म थ्रू योर STM एनालिसिस. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोपी बोला जाता है, या ऑप्टिक, जिसमें ऑप्टिकल डेफिनेशन ऑफ इमेजेस देते हैं तुमको. ठीक है, क्लियर? सो बेसिकली बीच बीच में मैं क्या करूँगा, अभी जस्ट मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मैं बीच बीच मैं एक काम करूँगा, मैं एनिमेटेड देने का कोशिश करूँगा तुम लोग को. ठीक है, जितना हो सकता है.
ठीक है। अभी फिलहाल नया नया क्लास है, मैं उतना नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ ड्यू टू सम अदर वर्क्स ऑल्सो, बट धीरे धीरे मैं एनिमेटेड करना शुरू करूँगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को और ज़्यादा इजी हो जाए चीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे आज कि कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, बिकॉज जनरली कार्बन ही सब कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज कार्बन इज द ओनली, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन इज द पेरेंट, मतलब पेरेंट है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो उसमें कार्बन रहेगा ही। जो भी कंपाउंड तुमको लिखना है, जैसे एसीटोन हो, एसिटिक एसिटिक हो, जो भी फॉर्मेल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन, जितना भी कंपाउंड में देख लो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हाई? बिकॉज दे हैव, एक होने से भी उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल में एक कार्बन होना ही पड़ेगा। इफ देयर इज नो कार्बन देन दे विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी क्या देखना है कि हम लोग का जो कार्बन होता है वो कार्बन जनरली कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा टॉपिक था आज का कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो कार्बन का स्ट्रक्चर, तो जनरली एलिमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। एलिमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता है मतलब जनरली अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट का, अगर सपोज 118 एलिमेंट है हम लोग के पास, अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूँ सब अलग अलग सबका, अगर तो मैं सिंपली में क्या करूंगा, सिंपली मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे तुम निकालोगे? तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर कब होता है, जब कोई भी एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जब होगा तब उसमें स्ट्रक्चर का बात आता है, ठीक है। हर एक कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है। हाँ, उसमें सिमिलरिटी हो सकता है कि हाँ तुम भी लीनियर हो, मैं भी लीनियर हूं, ठीक है। तो दोनों ही लीनियर स्ट्रक्चर्स है, तब उसमें अलग अलग एक व्यूज आता है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि एलिमेंट का कोई स्ट्रक्चर्स होता नहीं है, जनरली दे आर, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बोर्ड्स बोला था, बोर्ड्स ने क्या बोला था, द एटम्स आर व्हाट, सर्कुलर इन शेप। तो जनरली हम लोग सर्कुलर लेके पकड़ रहे हैं सबको, बट जनरली सच में कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म होने से उसका स्ट्रक्चर्स आ जाएगा, हाँ वो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे स्ट्रक्चर्स को अगर देखना है तो स्ट्रक्चर्स के लिए तुम कोई भी हायर इंस्टीट्यूट में चले जाओ या कॉलेज में चले जाओ, उसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर्स हम लोग जानते हैं कि अगर कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें स्ट्रक्चर्स का बात आता है, ठीक है। तो जनरली अभी स्ट्रक्चर्स का बात आता है, मतलब व्हाट यू मीन बाय द हाउ द कंपाउंड आर एग्जिस्टिंग in the year, or you can say how the compounds are existing in the generally how they are existing, okay। जैसे any element, we know that any element or any compound which have life or having no life, they are all matters. So matters means it have a fixed mass and occupy some space. So generally all are having matters. Now the question is that how carbon makes compound and why carbon, how the carbon is forming compound. So there are many questions, बहुत क्वेश्चंस होता है कि कार्बन क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर कार्बन का हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हाउ मच, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, इट इज 6, वी नो, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर 6 है तो हम लोग उसका मोलिकुलर मास भी जानते हैं कि 12 होता है, ठीक है। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ओके। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई कार्बन मेक्स कंपाउंड। अगर कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि तभी हम लोग बोलेंगे कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं कुछ कंपाउंड का भी नाम लिख रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल सी, जैसे CH4, ठीक है, ये एक लोएस्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज है, बाद में तुम लोगों को मिलेगा ये सब चीज। देन C2H कितना होगा पता है तुम लोग को, इसमें होता है H4 होता है, ठीक है। देन C3H8। सो कुछ कंपाउंड है जो कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि दिस मे बी formed with the carbon. Then any other compound formed by carbon? Yeah, there are many compounds.
you cannot predict how much compound can form by the carbon here, like acetic acid CH3COOH, ठीक है, then alcohol, कोई भी अल्कोहल लिखा मैंने यहाँ पे, इस कंपाउंड का नाम है मिथानॉल, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. देन वी आर डीलिंग विथ मेनी कंपाउंड्स लाइक CH3C, then you can say that, sorry, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, मैंने उस दिन भी लिखा था. then carbon tetrachloride, then any other compound you can cite. So there are many compounds, just I have written 5 to 6 compound formed by carbon here. Now the question is that whether they have structures, ये लोग का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है कि नहीं. यस, जनरली यहाँ पे जो कार्बन का स्ट्रक्चर्स होता है, जनरली जो कार्बन का जो जनरली स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है विद द हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स जनरली हम लोग कार्बन, अगर कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो जनरली इसको भी बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कार्बन और हाइड्रोजन, अगर सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, दैट मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो हाइड्रोजन एंड कार्बन कैसे बनता है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये बहुत इजी, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बट ये एक सिंपल मैंने एक बोल सकते हो कि सर ये कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में शायद तुम लोग का चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होने से कार्बन हाइड्रोजन बनता है. बट वेदर इट इज वेरी इजी, वेदर इट इज वेरी फिजिबल, ये क्या बहुत इजी है क्या, मिक्स कर दिया दोनों को कार्बन हाइड्रोजन बन गया, इतना इजी है. देखो कार्बन भी गैसियस स्टेट में रहता है और जनरली हाइड्रोजन भी किस स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है. तो दोनों गैसियस एटॉम कंबाइन होने से क्या बनता है, जनरली कार्बन एंड हाइड्रोजन बनता है. बट जनरली अगर तुम देखना चाहते हो, इट इज हाउ दिस कंपाउंड आर फॉर्मिंग टू फॉर्म CH, दैट इज कार्बन हाइड्रोकार्बन, whether it is very easy for us or whether it is easy for any chemist to do this reaction in a very feasible manner. No, you cannot say it is a feasible way. Now the question is that what are the how the compound is forming by the carbon here. See, you have to study this, that means one topic is that is hybridization, and you have already, those who have studied the part 1 or those who have still not studied, you have to study this hybridization concept in the part 1, that is a part 1 part, ठीक है. So part 1 में एक टॉपिक है जिसमें तुम लोग को कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स, तुमको हाइब्रिडाइजेशन भी देखना पड़ता है, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन मालूम होने से क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुम बोल सकते हो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन. एक बात है जिसको हम लोग बोलते हैं VSEPR थ्योरी, ठीक है. तो जनरली हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे, बट सिंपली हम लोग एक चीज बात करेंगे यहाँ पे कि कार्बन अगर है तो कार्बन का कोई जो मोलिक्यूल फॉर्म होगा उसमें स्ट्रक्चर्स होगा. तो स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकता है, एक सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, सपोज मीथेन, ठीक है. ये भी गैस है, हाँ, इसको बोला जाता है मार्स गैस. मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस. कोई कोई गैस का कोई पार्टिकुलर नाम होता है, तो मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस बिकॉज दीज आर फाउंड इन द मार्शी एरियाज. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई हाउ दिस CH4 एग्जिस्ट, ठीक है. एग्जिस्ट मतलब मीथेन का फॉर्मूला होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है या फॉर्मूला बोल सकते हो, उसका यूनिट है CH4, एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटॉम्स, both combine to form, that means carbon and hydrogen combine to form CH4. जैसे मैंने कुछ देर आगे लिखा था CH, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म CH4. इट इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, क्या बोलूं इसका, इट इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट अभी के लिए देख लो कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे एनालिसिस करेंगे. तो CH4 का एनालिसिस जब किया हम लोग ने थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, तब हम लोग को स्ट्रक्चर्स मिला था टेट्राहेड्रल. ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये जनरली एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से हम लोग को मालूम चला. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज बोलते हैं इसको. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज को जब ये कंपाउंड हम लोग एक्सरे में डाला, उस इंस्ट्रूमेंट में डाला, तब हम लोग को वो स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिया. तो ये स्ट्रक्चर्स जनरली क्या दिया हम लोग ने बोला ये स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर्स का नाम है टेट्राहेड्रल इन शेप, सॉरी टेट्राहेड्रल इन शेप, टेट्राहेड्रल.
Now what is tetrahedral? Tetrahedral means it lies in the plane. Now plane में कैसे lie कर रहा है? This is somewhat critical for me, but thing is that you can, I will give you the animated pictures of that how to rotate a molecule through some software we have. If possible, I will give you that link in my description. Not today, but afterwards I will give you the link so that you can draw any, you can give any name of any molecule. कोई भी नाम डाल सकते हो मॉलिक्यूल का, उसका स्ट्रक्चर तुम वहां पे सर्च करने से तुमको मिल जाता है. ठीक है, कैसा होता है स्ट्रक्चर्स, खुद ड्रॉ करके खुद व्यू ले सकते हो 360 डिग्री में. ठीक है, सो केम ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है एंड अल्ट्रा 3D, केम अल्ट्रा 3D बोल के एक सॉफ्टवेयर है. और भी सॉफ्टवेयर है शायद, मुझे इतना मालूम नहीं है, बट स्टिल if possible afterwards I will give you the link of that particular जो सॉफ्टवेयर है जो तुम लोग इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो. इफ एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कमेंट में मुझे मेंशन कर देना. ठीक है, सो जनरली स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, जनरली देखने में ऐसा होता है स्ट्रक्चर जनरली. ठीक है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन. ठीक है, बीच में जो है मैंने जो पकड़ के रखा था ये है कार्बन. तो जनरली स्ट्रक्चर्स होता है ऐसा. तो CH4 बोलते हैं. जनरली ऑल लाई इन द प्लेन, दे आर लाई इन द प्लेन. दैट इज CH4, that is the methane, it is in the, you can also call that it is a planar molecule. So planar molecule means they are all lie in the same plane. Okay, if you consider the 2D pictures of that molecule. Okay, now the question is that if CH4 looks like this and it is confirmed through X-ray diffraction studies, so this is the one method to find any structure. That means the elemental analysis, you can say. So basically the tetrahedral, you can also check from the part 1, that is from the class 11 part, that is the tetrahedral angle will be somewhat 109 degree and 28 minute. Okay, so it is the bond angle of this tetrahedral molecule. Now this concept we do not have to study in this part, in this organic section, but still we have to know that if any compound formed by the carbon, that is hydrocarbon, so generally they are in tetrahedral shape. That is the simplest member of the alkane series will be tetrahedral in nature. Now this is for CH4 only, but it is not that CH4 only carbon will form with the, only carbon can form compound with the hydrogen, or it only react to the hydrogen. Yeah, it may react with other element also. So depending on the combination of elements, it will have different structures. Now basically, if simplest alkane member you can, if you are taking, then they will lie in the plane. Okay, so there are some inorganic molecules also, you will see. That means they are in the plane or they are out of the plane, or means out of the plane means they will above the plane and one is the below the plane. There's a phosphorus pentachloride, thionyl chloride. So there are many compounds where the structures you cannot say that they are lying in the plane. Yes, some of the atoms lie in the plane, some of will below the plane, some will above the plane. So generally you will see later on all those structures, but today the CH4, that is the simplest member of the alkyl series, will be somehow, it is the tetrahedral in nature, it is lying in the plane, and it is bond angle 190 28 minute, and it is confirmed by X-ray diffraction studies. And for this concept generally we have that is one, for this reason, no, the Van 't Hoff got the Nobel Prize in chemistry. That is the first Nobel Prize in chemistry, and it was given in 1901, who is also called the father of organic chemistry. And this concept generally lead us to one more thing, that is called stereochemistry. ठीक है, और एक टर्म जनरली जनरेट होता है, वो होता है स्टेरियोकेमिस्ट्री. तुम लोग को बाद में मिलेगा स्टेरियोकेमिस्ट्री. ओके, अभी देखने का जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत बाद में डिस्कस होगा ऐसा. तो जनरली ये जो स्ट्रक्चर्स हुआ कंपाउंड का, कार्बन का मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, कुछ स्ट्रक्चर्स एक्स-रे डिफ्रेक्शन स्टडी से मिला, तो जनरली ये जो कॉन्सेप्ट आया, जनरेट हुआ, वो जनरली लेके चला गया स्टेरियोकेमिस्ट्री का एक टर्म पे. तो स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है जनरली, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन स्पेस में एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसा है, कैसे लाई कर रहा है. तो जनरली ये दूसरा एक टर्म पे लेके गया, वो स्टेरियोकेमिस्ट्री, जो बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट तुमको देगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करता है
इन द प्लेन, ठीक है, इन द स्पेस, ठीक है। तो जनरली अभी जो है कि हम लोग को जैसे we all know that if a chemical compound is formed, then there will be there may be release of some energy, or there may be some absorption of energy, okay। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें हम लोग बोलेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो जनरली उस रिएक्शंस को हम लोग जनरली बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो तुम लोग लोअर क्लास में भी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो जनरली दीज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन के टाइम पे, देन दे विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट केमिकल कंपाउंड फॉर्म होने से अगर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, ना रिलीज हो रहा है, ना एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स नाइदर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स नॉर विद द मैटर, सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, उसमें हम लोग बोल सकता है कि वो जनरली वो रिएक्शंस क्या बोल सकता है जनरली, उसमें सिंपल है कि वो कंपाउंड में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं है। हाँ होता भी है, ठंडा है, दोनों चीज तुमने मिक्स किया, दोनों ही ठंडा था, ठंडा ही रहा, एक चीज ठंडा था वो भी चीज ठंडा था, दोनों मिक्स किया गर्म हो गया। तो उसमें जनरली क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज के बारे में कुछ आता है टर्म्स, ठीक है। तो अभी अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें जनरली क्या हो सकता है, उसमें जनरली क्या हो सकता है, उसमें कुछ बॉन्ड हो सकता है। बॉन्ड मतलब हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर? देखो वैलेंसी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी तुम लोग ने छोटा क्लास में स्टडी कर चुके हो। वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अभी मेरा 2 हाथ है, मैं 2 बंदे को ही पकड़ सकता हूं एक ही बार में अगर मैं बोलूं, ठीक है। बट अगर मेरा 4 हाथ होता, 2 पीछे से भी होता, तो मैं और 2 को ले सकता था। बट मैं एक ही टाइम पे आई कैन होल्ड 2 हैंड्स एट अ टाइम, ठीक है। तो ये मेरा वैलेंसी कितना होगा, कोई भी पर्सन का वैलेंसी कितना होगा, तो फिर 2 होता है, बिकॉज आई हैव 2 हैंड्स ओनली। बट अगर मैं बोलूं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, मतलब कार्बन कितना एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन हो सकता है एक ही बार में, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती देना है, वो ले नहीं पा रहा है बट तुम जोर जबरदस्ती उसको ढकेल रहे हो कि लो इसके साथ भी कंबाइन करो, उसके साथ भी कंबाइन करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें वैलेंसी डिटरमाइन करेगा, और वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन में वैलेंसी कितना है, 4 है। 4 है मतलब कैसे मालूम चला? सो अगेन वी हैव टू नो the electronic configuration of carbon. So we know that electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2। अगर छोटा क्लास में तुम लोग ने छोटा क्लास में ऐसा करके नहीं लिखा था 1s 2s 2p, ठीक है, और तुम लोग ने क्या लिखा था, 2 then 4 लिखा था। 2 4 means it is the number of electrons, that is atomic number is 6। atomic number is nothing, it is the number of electrons, or you can say और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। कब इक्वल होता है? जब उस कंपाउंड में या इस एलिमेंट में चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है बट प्रोटॉन सेम रहता है। सेम रहता है मतलब अगर एटॉमिक नंबर 6 है बट उसमें चार्ज -1 हो गया, जैसे क्लोरीन का तुम लोग ये भी स्टडी कर चुके हो, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव मीन्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तुम कितना बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे तुम -1, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17। बट अगर कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज में, जैसे लिथियम पॉजिटिव, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो 3 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज क्या है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी प्रोटॉन, यहाँ पे number of electrons will be 2 and number of protons will be 3. So these are the concept you have already studied in your lower classes. Now basically in for carbon you can see that for carbon 1s2 2s2 2p2 अभी ऐसे ही लिखना होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये जनरली रूल फॉलो होता है अबाव प्रिंसिपल, दैट इज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, उससे ये रूल मतलब बनता है, ठीक है। 2.4 होता है, तो 2.4 मीन्स 2 दैट इज योर
first shell and the fourth number shell is the second shell. Now how will you depict these structures? अगर तुमको इस एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कार्बन है सपोज, उसका एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो सिंपल में ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा होगा उसका स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसा होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो फर्स्ट सेल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 2 होता है, और बाद में कितना है? आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 4 है, ठीक है। सो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब वी नो दैट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैक्सिमम 2 नंबर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इट विल अटेन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का नेक्स्ट जो नोबेल गैस है, मतलब अगर अलोंग द पीरियड अगर जाते हो कार्बन, देन इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो नियरेस्ट नोबेल गैस क्या होगा? नियन होता है। और नियन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नियन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में भी कितना है? 6। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। बट कार्बन क्यों गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन का इतना पावर भी नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, बट कार्बन एक चीज कर सकता है, वो है दोस्ती। अभी दोस्ती कैसे करेगा? अब दोस्ती में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तुम भी कुछ बोलो, मैं भी कुछ बोलूं, तो यहाँ पे क्या लेन देन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। और इलेक्ट्रॉन का लेन देन मतलब किसके साथ लेन देन करेगा? जिसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी नोबेल गैस होने के लिए। इसलिए जो सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था वो है CH4, ठीक है। CH4 में अगर मैं स्ट्रक्चर, अभी मैं डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसा होगा, बट अगर मैं ऐसे ही एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता हूँ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कार्बन में है, जो आउटर मोस्ट शेल में है। तो कार्बन ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिकॉज कार्बन क्या है जनरली? कार्बन जनरली क्या बनाता है? इट फॉर्म्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली ये कार्बन क्या करता है? जनरली म्यूचुअल शेयरिंग करता है दूसरा एलिमेंट के साथ। और कार्बन और हाइड्रोजन में जब बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, अराउंड 2.5, और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट जनरली बहुत कम दिखा जाता है कि कार्बन नेगेटिव चार्ज होता है। बट जनरली कार्बन के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन तुम्हारा सल्फर, देन कोई भी अगर एलिमेंट है, फ्लोरीन, अगर कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, जो कार्बन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो डिटरमाइन किससे करते हैं हम लोग? पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक स्केल है, उससे हम लोग हर एक एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, उस स्केल से। पर जनरली बहुत एक्सेप्शन भी है उसमें भी। तो कार्बन का देखा गया कि 2.5 है और हाइड्रोजन का है 2.1। तो अगर डिफरेंस लोगों कितना होगा? 0.4 का डिफरेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन स्ट्रॉन्ग है मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। उसमें क्या फॉर्म होगा? तो फिर उसमें होगा कुछ कुछ आयंस क्रिएट होगा। मतलब अगर पॉजिटिव है कार्बन, अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 4 हाइड्रोजन से खींचेगा, तो कार्बन 4 नेगेटिव हो जाएगा। और 4 नेगेटिव मतलब इट विल फॉर्म आयंस, नॉट ए मोलिक्यूल हियर। सो बेसिकली हियर क्या होगा? यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों हाइड्रोजन में। तो ये लोग क्या करेगा? ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो शेयर करने के टाइम पे क्या हो गया कि कार्बन में कितना हो गया? अभी टोटल हो गया 8। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया कार्बन का? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो पहले कितना था? 4, अभी हो गया और 4 ऐड हो गया हाइड्रोजन का भी। तो 2,8, 2,8 मीन्स 2.8 मीन्स इट इज टोटल इज 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब नियॉन, दैट इज इट अटेन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये CH4 का एक how to form a compound with the hydrogen, that is the situation how this compound formed. Okay, clear? So for today this much. In the next video I will upload
continue to my topics. Okay guys, so don't be scared, don't be demotivated. That is the main motto for all the students, because result is going to be published on June 6th. And for all candidates, from my below from my heart, I'm saying you all the best. God bless you, and keep and be healthy, okay, and be safe. Thank you.